Vishwanath, your science teacher. So now let's discuss about the magnification. Magnification is a quantity which tells us how many times an image magnified than the object. It may be positive or negative. So we discussed all different cases, what happened when it is negative or what happened when it is positive. So simply magnification is defined as a ratio of height of image to the height of object. So the magnification is represented by, denoted by small m, and it is defined height of image upon height of object. And the definition is also same. This is the ratio of height of image to the height of object, and it is denoted by small m, and it shows how magnified and how large or small an image produced by the mirror than the object. Now simply we can say that it is represented by this height is h dash and this is h. So what is h dash? Height of image from the principal axis, and what is h? Height of. Now अब हम ये जो फॉर्मूला है, अब we want to convert this formula in terms of v and u. So रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं. This is a mirror, concave mirror, and this is the principal axis. So the focus is here. This is focus, and at the same height is center of curvature. If an object is placed here, then parallel ray passes through the focus after reflection. One is here, and we consider an oblique ray. Oblique ray incident on here, and after reflection is that this angle I and angle R should be same. So this is the oblique ray. These two rays intersect here, so this is image. This one is object. Suppose we consider the object is AB, and image is PQ. Okay. Suppose the height of this object is h and the height of image is h dash. Height will be measured from the principal axis. So we use simple mathematics, and we have to convert this formula in terms of v and u, distances of image and object from the mirror, from the pole or from the mirror. So this is O. Okay. Now we know that these two, this triangle and this triangle are similar triangles. First of all, we represent that this distance is u. Mirror से object तक का distance u है, and this distance is v, distance from mirror to image. Okay, ये triangle है, triangle AO, this point is O, yes, AOB, and triangle POQ are similar triangles. If these two triangles are similar, this triangle, we talk about this triangle and this one. We know that this angle is equal to this angle, and this is 90. One angle of this triangle is also 90. So third angle is also same. So these two triangles are similar triangles. So that's why the ratio of sides should be equal. So this side is AB equal to this side is PQ upon this side of this triangle is OA, and this side of this triangle is OP. And we have to calculate h dash upon h. So h dash is PQ
कर देंगे, ए बी को हम यहाँ डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे, ओ पी को न्यूमरेटर में ले आएंगे। सो दिस इज ओ पी अपॉन, साइड लिख देते हैं हम लोग, यहाँ ले लेते हैं OP अपॉन, OP को इधर ट्रांसफर कर दिया है OA, दैट इज इक्वल टू OP अपॉन OA, दैट इज इक्वल टू PQ अपॉन AB। ओके, PQ अपॉन AB को इस तरह लिख लेते हैं और ये वैल्यू पुट कर देते हैं। PQ अपॉन AB को इधर लिख दिया, OP का वैल्यू बताइए, OP ये दिस वैल्यू O, अब मेजर यहां से करना है, O से लेके P तक जाना है। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन व्हेन वी मेजर द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इट इज टेकन नेगेटिव। अगर हम पोल से अपोजिट इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं, so it is taken negative. So this distance is V from mirror to image. So this is minus V, and OA, this is minus U, and put the value of PQ and AP also. The value of PQ, this value of PQ, this is minus U. The value of PQ, okay, according to sign convention, the height measured from the principal axis, above the principal axis it is taken positive, and below the principal axis the height is taken negative. So the height of image is taken negative here. This height is h dash. So this is minus h dash upon AB. AB is h, and this height is taken positive because it is above the principal axis. So this is negative to negative, minus V upon U. Okay, this is cancel out. So this is h dash upon h. This is equals to minus V upon U, and h dash upon h, this is equal to m. So यहाँ पे मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूला आता है। फर्स्ट फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड नेगेटिव साइन एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सो एक हाइट की फॉर्म में आ गया है और एक डिस्टेंस की फॉर्म में आ गया है। जो भी आपको वैल्यू गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर देंगे। ओके, अब मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, if m is positive, m अगर पॉजिटिव है तो यहां से क्या क्या चीजें हमें समझ में आती हैं, और if m is नेगेटिव तो क्या चीजें समझ में आती है। m अगर पॉजिटिव है तो एक चीज समझ में आती है, m अगर पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव होंगे। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव होंगे, और दोनों पॉजिटिव कब हो सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऐसा हो तो इमेज भी ऊपर की तरफ ही बन रहा हो, तो ये भी हाइट पॉजिटिव लेंगे, इसको भी पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब ये है कि इस केस में इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। वर्चुअल भी इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल। बट पॉजिटिव वैल्यू से क्या कंक्लूजन लेना है, इरेक्ट तो होगा। क्यों? क्योंकि जिस अगर ऑब्जेक्ट का हम पॉजिटिव ले रहे हैं h को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो h डैश भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, तभी m पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो इमेज भी नीचे की तरफ बनेगा, तो इरेक्ट ही बनेगा। ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इस केस में अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट ही बनेगा, और m का वैल्यू नेगेटिव है तो इन्वर्टेड और रियल। ओके, अब m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, मे बी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो व्हाटएवर, तो इमेज कैसा बनेगा, लार्ज। इमेज कैसा बनेगा, लार्ज। सपोज m का वैल्यू अगर -2 है, -2 है तो क्या होगा, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये कहीं भी मिरर है, ये ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है, तो इमेज कैसा बनेगा, -2 है तो इससे डबल कहां बनेगा, -2 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब इन्वर्टेड है, 2 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स,
तो जो इसका हाइट है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो व्हाटएवर पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात से ये डिसाइड होगा। अब m अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसा बनेगा? लार्ज, और m लेस देन 1 है तो इमेज कैसा बनेगा? स्मॉल। सो m के वैल्यू से हम काफी चीजें डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं, इमेज लार्ज है या इमेज की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, वर्चुअल है या करेक्ट है या लार्ज है, स्मॉल है, सब कुछ। m एक्चुअली क्या है इसको और थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझते हैं। m एक्चुअली क्या चीज है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? मान लो ये कॉन्केव मिरर है और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और ऑब्जेक्ट का इमेज बना यहाँ, ये हाइट कितना है? उसका हाफ बना, इसका हाफ बना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज 2/4, और ये वाला हाइट लेंगे नेगेटिव -2 वाला नेगेटिव लेंगे। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए, हाइट ऑफ इमेज माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, -2/4, ये वाला 4 प्लस में लेंगे, ठीक है। ये कितना आता है? ये आता है -1/2। -1/2 का मतलब क्या है? नेगेटिव है तो इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड और नेगेटिव। 1 से ग्रेटर है कि लेस है? 1 से लेस है 1/2, 1 से लेस है तो कैसा बनेगा? तो मैग्निफिकेशन का जो भी वैल्यू है 1/2 है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है इमेज उसका आधा बनेगा, उसकी हाइट कैसी होगी? हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कहीं पे 2 है इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है दैट इज उसका जो हाइट है वो डबल होगा, जस्ट डबल फ्रॉम द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन देता है। आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम ऑलरेडी इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं या आप प्रैक्टिस कर रही हैं उनका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन को जाने से पहले हम ये सोचते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता था। 2 टर्म है, प्रोनाउंसिएशन में हम गड़बड़ कर देते हैं। एक टर्म है रिफ्लेक्शन और एक टर्म है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक मिरर है और लाइट रे आती है और सेम मीडियम में रिटर्न होता है। तो when a light ray incident on the boundary of 2 medium, or we can say that interface of 2 medium, and after strike to that boundary it return to the same medium, that is called reflection. If a light ray enter into the second medium, this is known as, ये suppose glass है और ये है एयर। सो एयर से ग्लास में अगर एंटर कर जाएगी लाइट की रे, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो मीडियम को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाना रिफ्रैक्शन, टकरा के सेम मीडियम में रिटर्न हो जाना रिफ्लेक्शन। तो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ नहीं करेंगे। अभी हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो जब भी बोला जाएगा उसको रिफ्रैक्शन ही समझना है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, वो अपना रास्ता बदल लेती है, बेंड हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। प्रॉपर इसको बोलेंगे तो व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट बेंड्स, इट डेविएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसके कुछ बेसिक एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं। एक एग्जांपल को समझते हैं कैसे होता है। मान लो ये हमारे पास में बकेट है, टब है और इसमें वाटर फिल्ड है। तो इसमें अगर कॉइन रखा है तो वो कॉइन हमें थोड़ा सा हाइट के ऊपर, बेस में है कॉइन लेकिन हमें क्या लगता है थोड़ा ऊपर है। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो आप सीधा अगर जस्ट ऊपर से देखेंगे तो नहीं दिखेंगे, थोड़ा टेढ़ा यहाँ से देखेंगे। अगर आप यहाँ आपने अपनी आईज को प्लेस किया है
से रेज जाती हैं और जो रेज हमारी आंख में जाएंगी तो कॉइन हमें दिखेगा। हम पहले ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि चीजें हमें कब दिखती हैं, जब उनसे लाइट रेज आके हमारी आईज में आए तो हमें वो चीजें दिखती हैं। ठीक है, अब यहां से एक लाइट रेज आती है और एक लाइट रेज जाती है सीधी, और जो सीधी रेज आएगी वो सीधी निकल जाएगी क्योंकि एंगल 90 है इसका, इस बाउंड्री से एंगल 90 है तो सीधी निकल जाएगी, ये कोई बैंड नहीं होगी। अब जो एक रे जो इस तरफ जाएगी यहां पे ऐसा, एक रे जो इस तरफ जाएगी, हम यहां से देख रहे हैं इस जगह से, यहाँ पे हमने अपनी आइज को रखा है, तो एक रे हमारी आइज में आई है। बहुत सारी रेज आती है पर हम सिर्फ 2 रेज को देख रहे हैं और उनसे डिसाइड करेंगे कि ये हम इसका इमेज कहाँ बनेगा पॉइंट का। तो हमने अपनी आइज को यहाँ रखा है, एक रे हमारी आइज में स्ट्रेट आई है ऐसा, और दूसरी रे ये ऐसे आ रही है छोटे से एंगल। ये रे एक्चुअली क्या होता है, इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने जा रही है, तो यहाँ ये नॉर्मल है इस बाउंड्री पे जहाँ पे आपने हिट की है। अब अगर ये रेयर मीडियम में जा रही है, देखिए अभी हम बात करेंगे, कुछ मीडियम होते हैं रेयर, कुछ मीडियम होते हैं डेंसर, जिनके पार्टिकल हैवी होते हैं वो डेंसर मीडियम है, जिनमें मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है वो डेंसर होते हैं, और जिनमें मूव करना आसान होता है वो रेयर होते हैं। अच्छा, तो ये क्या होता है, ये इसका एक्चुअल रास्ता है, ये एक्चुअल रास्ते से बैंड हो जाती है, इस एक्चुअल रास्ते से बैंड हो जाती है और ये इस तरह से जाती है ऐसे बैंड हो ऐसे। अब हमारी आइज में क्या क्वालिटी है, हमारी आइज बैक ट्रैक करती है रेस को, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये रियलिटी में तो आगे जाकर इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो इसको बैक ट्रैक किया यहाँ आगे, इसको बैक ट्रैक किया, ये आके यहाँ इंटरसेक्ट करती है, ये आके यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो पॉइंट यहाँ रखा है वो हमारी आइज को कहाँ दिखेगा, यहाँ। क्यों? क्योंकि इमेज तो वही बनती है, यहाँ दोनों रेज इंटरसेक्ट करती है। अब ये क्योंकि बैंड हो गई तो इसको जब बैक ट्रैक करते हुए आएंगे तो यही कट कर देंगे एक दूसरे, तो इसलिए हमें कॉइन ऐसा ऊपर उठा हुआ दिखता है, यहाँ की बजाय यहाँ दिखता है यहाँ। क्यों? क्योंकि इमेज तो यहाँ बनी, रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन। और हम एक स्ट्रॉ डालते हैं वाटर में या जूस में, तो वो भी हमें बैंड करता हुआ दिखता है, थोड़ा लार्ज भी दिखता है, तो हमें समझ में आता है कि वाटर के अंदर और वाटर के बाहर तो कुछ तो डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है वो, ये लाइट का एक फिनोमिना है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और बात करेंगे, 2 तरह के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर। रेयर मीडियम में पार्टिकल रेयर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, और इसमें वेलोसिटी, लाइट की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज, और इसमें लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी क्या हो जाती है इसमें, डिक्रीज। ऐसा क्यों? ऐसा हम सब जानते हैं। रेयर मीडियम में आप दौड़िए, ज्यादा तेज दौड़ पाएंगे, वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। अब आपको बोला, क्योंकि आप पहले एयर में दौड़ रहे थे, जब आप दौड़ रहे थे तो आप एयर के पार्टिकल को हटाते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे सामने एयर के पार्टिकल्स हैं, जब आप मूव करेंगे तो एयर के पार्टिकल को आप यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, तो आप मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैसा मीडियम है, रेयर, पार्टिकल दूर दूर है। अब आपको बोला चलिए उतनी स्पीड से आप वाटर के अंदर दौड़ के बताइए, अब आपके कमर तक पानी भरा हुआ है, क्या आप जितना स्पीड से एयर में मूव कर रहे थे उतना ही स्पीड से वाटर में भी मूव कर सकते हैं? नहीं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है। किसकी? हर चीज की, लाइट की, लाइट की भी होती है। ओके, तो हमने ये बात कर ली कि रेयर में वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा। रिफ्लेक्शन की हम बात कर लेते हैं, तो उसके लिए बार बार हमें एक कंटेनर बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमें बाउंड्री बनानी है, एक ऐसा बाउंड्री बना लेंगे, लेकिन इसमें पेंट नहीं करेंगे रिफ्लेक्शन की तरह, क्योंकि यहाँ दोनों साइड अलाउ है, इधर से इधर भी रेज जा सकती है और इधर से इधर भी जा सकती है।
मान लो ये रेयर मीडियम है, रेयर, और ये वाला मीडियम है डेंसर, और ये दोनों की बाउंड्री है, इससे ऊपर एयर है, इसके नीचे वाटर है, ऐसा कुछ। तो क्या होगा, तो लाइट की एक रे आती है ऐसे, और इस पॉइंट पे आकर स्ट्राइक करती है। इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। क्या नाम है? इंसिडेंट रे। और ये है नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाते हैं? जहां रे आके स्ट्राइक करेगी उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बनाना। ये इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। अब इसका एक्चुअल रास्ता कौन सा है? तो इसका एक्चुअल रास्ता कौन सा है? तो इसका एक्चुअल रास्ता ये वाला है जिससे ये जा रही थी पहले। अगर ये मीडियम नहीं होता सेकंड वाला तो ऐसे कैसे जाता? लेकिन ये किस मीडियम से किस में जा रही है? पहले रेयर में चल रही थी, अब किस में जाना है इसको? डेंसर। अब यहाँ इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, जैसे ही डेंसर में एंटर करेगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? डेंसर में वेलोसिटी कैसी रहती है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि पार्टिकल हैवी है, उनको पार करके जाना है, वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ये रे जो ऐसी जानी चाहिए थी वो ऐसे जाएगी। वेलोसिटी कम होने की वजह से स्लो हो जाएगी रे, और कैसी जाएगी? ऐसे। इस रे का नाम क्या है? इस रे का नाम है रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? When a ray enter from one medium to another medium, then it bends from the actual path. This is called reflection. अच्छा, अब अगर मान लो इस तरफ डेंसर मीडियम होता है और रे पहले से डेंसर मीडियम में चल रही है और अब उसको रेयर मीडियम में एंटर करना है, तो क्या होगा? तो ये एक लाइट की रे आती है और यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसका एक्चुअल रास्ता कैसा है? लेकिन अभी क्या होगा? पहले ये किसमें चल रही थी? डेंसर। फिर ये जैसी बाउंड्री को क्रॉस करेगी ये किस मीडियम में आ जाएगी? रेयर में आ जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब ये फास्ट चलने लगेगी, पहले ऐसे चल रही थी, अब ये फास्ट चलने लगेगी ऐसा। जो एक्चुअल रास्ता है उससे और फास्ट चलने लगेगी। तो वही इस रे का नाम इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये वाली रे। तो हमारी समझ में आ गई। क्या समझ में आई कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो कभी वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दो फिनोमेना होते हैं। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कब आएगी? जब रेयर से डेंसर में आएगी। तो ये किस तरफ बेंड हुई है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये क्या किधर बेंड हुई है? अवे फ्रॉम। तो हम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन बना सकते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, it deviates from its actual path, it bends from its actual path. This is known as refraction. Okay, when light ray enter from rare medium to denser medium, it bends towards the normal, and when light ray enter from a denser to rare medium, it bends away from the normal, towards the normal, away from the normal. Okay, so ये फिनोमेना हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। तो ये हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो किस तरह बेंड होगा, और डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है तो किस तरह बेंड होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। When light travel in a given medium, it travels in a straight line. किसी एक मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन। However, when it passes, so it is different. So हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि बहुत डेली लाइफ में बहुत सारे फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर एक वुडन का पीस हम डाल देते हैं तो उसको अगर हम सीधा देखेंगे, क्योंकि हम कुछ लॉस पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के। जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉस थे, तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं और आई इक्वल्स टू आर, वैसे ही रिफ्लेक्शन के भी लॉस है। एक लॉ तो सेम है, तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और यहाँ पे थोड़ा चेंज है, रिफ्रैक्टेड रे।
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन। एक लॉ तो दोनों का सेम है। एक लॉ डिफरेंट है, उसकी बात करेंगे, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, बट फिलहाल इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जब एक स्केल को वाटर में पार्शियली डिप कर देते हैं, आधा डुबो देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो हमें थोड़ा मुड़ा हुआ दिखता है, बैंड दिखता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि आधा वाला स्केल तो हमें सीधा दिख रहा है विदाउट रिफ्रैक्शन, और आधा वाला स्केल रिफ्रैक्शन के थ्रू दिख रहा है। तो वहां से जो लाइट की रेज आएंगी कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है? डेंसर टू रेयर। तो कैसे चली जाएंगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे जाना चाहिए था इसको ऐसा, पर ये क्या होगी? बेड होगी। क्यों? क्योंकि डेंसर से किस में जा रही है? रेयर। ये मीडियम कौन सा है अंदर जिसमें पॉइंट है? डेंसर। और बाहर कौन सा मीडियम है? रेयर। तो डेंसर से रेयर में जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका एक्चुअल रास्ता कौन सा था? ऐसा। ये कैसे मुड़ गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ गई, दूर हट गई थोड़ी इसके एक्चुअल रास्ते से। तो ये ऐसा होता है, और दिस इज द रीजन कि हमें वो स्केल क्यों बैंड दिखाई देता है। Similarly, a coin or other object inside the water tank is seen at higher level. Coin हमें थोड़ा higher level पे दिखाई देता है। ये जो coin है वो कहाँ दिखाई देगा? यहाँ, ठीक है, यहाँ दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगे। ये फिनोमेना हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। You might also have observed that when a glass paperweight is placed over a written sheet, ऐसा होता है, टेबल पे आपका पेपर वेट रखा हुआ है। पेपर वेट किसका है? ग्लास का। और उस पेपर वेट के नीचे कोई पेपर है, तो वो जो उस पे पेपर में जो लेटर्स हैं जो वो हमें बड़े बड़े दिखते हैं और थोड़े मुड़े हुए अजीब से दिखते हैं। रीजन क्या है? रीजन है कि वहां से जो लेटर्स से जो रेज आ रही है वो ग्लास को क्रॉस करके आ रही है, और वो ग्लास को क्रॉस करके हमारी आइज में आएंगे, तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेंगे। पहले जो लेटर्स हैं वो एयर में है, वो पहले ग्लास में आएंगी रेज, फिर हमारी आइज में आएंगी। डायरेक्ट आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि पेपर वेट तो उसके ऊपर ही रखा है ना। तो ऐसा हो सकता था अगर पेपर वेट को हम यहाँ पकड़े तो ये जो लेटर्स हैं इनसे रेज हमारी आइज में है, तो हम इधर से देख लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे, इधर से ठीक दिखेगा, इधर से देखेंगे तो गड़बड़ दिखेगा, है ना। लेकिन जब इसके पेपर के ऊपर ही रख देंगे तो इधर से देखने का चांस भी खत्म हो गया अब हमारा, तो फिर एक ही चांस बचा कि उसी से क्रॉस करके आना है। तो ऐसा होता है। तो जब एक पेन पेंसिल को हम वाटर में सबमर्ज का मतलब क्या होता है? पूरा नहीं डुबोना, आधा या आधे से ज्यादा कुछ पार्ट उसका अंदर मर्ज हो जाए। इन ए वाटर कंटेनर देन जस्ट आफ्टर इंटरफेस ऑफ एयर वाटर मीडियम, ये इंटरफेस है, वो बाउंड्री जो दो मीडियम को अलग करती है, दैट इज नोन एज इंटरफेस। सो दिस इज इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, दिस इज इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। इसके ऊपर अलग मीडियम है, इसके नीचे अलग मीडियम। दोनों मीडियम क्या अलाउ करते हैं? लाइट को ट्रेवल करना अलाउ करते हैं। हमें ऐसे मीडियम की बात नहीं करें जो लाइट को ट्रेवल ही अलाउ नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे एक आयरन का शीट है, लाइट रे आती है, ये अलाउ ही नहीं करता उसको अपने आर पार जाना। हम कैसे मीडियम की बात कर रहे हैं? वाटर, ग्लास, ऐसे मीडियम जो लाइट को अपने अंदर से ट्रेवल करने के अलाउ करते हैं। ओके, तो हम ये देखते हैं कि ये जो देन द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी बैंड, तो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखता है? मुड़ा हुआ दिखता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बैंड या मुड़ा हुआ दिखता है। तो यू लुक फ्रॉम द साइड देन यू विल सी दैट द सबमर्ज पार्ट इज बिट बिगर, थोड़ा बड़ा भी दिखाई देता है कंपैरेटिवली जो सबमर्ज पार्ट है। इफ द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद अ ट्रांसपेरेंट plastic contain or with some other liquid, then you may observe that this effect of bending is different for different mediums. तो अगर आप वाटर की जगह कोई दूसरा मीडियम लेंगे तो ये ज्यादा मुड़ा हुआ दिखाई देगा या कम मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो दैट मीन्स ये जो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन, ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम। हो सकता आगे हम एक क्वांटिटी पढ़ेंगे जो ये बताता है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है, कितना ज्यादा रेयर है, मीडियम की प्रॉपर्टी को दिखाता है। जैसे हम जानते हैं ना, इससे टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या बताता है? कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कूल है, ये बताता है। वैसे ही हम एक चीज पढ़ेंगे जो ये बताएगा कि ये मीडियम ज्यादा डेंसर है या कम डेंसर है, उसका एक वैल्यू होगा, कुछ फिक्स वैल्यू बढ़ेगा तो मीडियम डेंसर होता जाएगा, वैल्यू कम होगा तो मीडियम रेयर होता जाएगा। जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता है ऑब्जेक्ट हॉट होता चला जाता है, टेम्परेचर का वैल्यू कम होता है ऑब्जेक्ट ठंडा होता चला जाता है।
दैट्स हमें क्वांटिटी पढ़ेंगे जो मीडियम की प्रॉपर्टीज को दिखाएगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रिफ्रैक्शन है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये रेज हो सकता है कम बैंड होंगी या ज्यादा बैंड होंगी। तो ये कितना बैंड हो रही है वो डिपेंड करता है कि ये मीडियम कितना डेंस है। ज्यादा डेंस होगा और इधर आएगा, और ज्यादा डेंस होगा और नॉर्मल के नजदीक आएगा, ठीक है। कम डेंस होगा इधर जाएगी, नॉर्मल तो उस तरफ तो जा ही नहीं सकती, इधर भी तो आ सकती है, ठीक है। तो ज्यादा डेंसर मीडियम होगा तो ज्यादा बैंड होंगी। ऐसे इधर ये वाला मीडियम अगर ज्यादा रेयर हुआ और उधर उल्टी चली जाएगी ऐसे। तो ये कितना बैंड होना है इसको, जैसे यहाँ बैंड कितना हुआ है थीटा, एक्चुअल रास्ता ये था, कितना बैंड होगी इस रास्ते से 20 डिग्री उधर खिसके, तो कितना ये बैंड होना है, ये कौन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। So the reason of seeing the partially submerged object as bent is that direction of light rays from the object out of water and from the object submerged. Okay, तो submerged object से जो लाइट की रेज आ रही है और डायरेक्टली जो कोई भी वुडन का पीस ले हम और उसको यहाँ डिप कर दें इस तरह से, तो ये जो वुडन का पीस है ये पोर्शन तो हमें ठीक दिखता है, ये वाला पोर्शन हमें ऐसा दिखता है, इस तरह से बैंड, इस तरह से बैंड दिखता है। क्यों? क्योंकि हमने आई से यहां से देखा, यहां से देख रहे हैं, इतना पोर्शन तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, और ये वाला पोर्शन कैसे दिखेगा, इससे रेज गई ऐसे, या यहाँ रेज तो इधर से जाएगी तो इससे रेज गई और रेज जाके क्या हो जाएगी बैंड। तो ये रेज यहाँ से जाती है, एक रेज तो डायरेक्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल वाली को मुड़ने का काम नहीं, इजी है थोड़ा। तो चलिए यहाँ से मान लो ये रेज गई है ऐसे, दो रेज, अब ये किस मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर टू है, और इनका रास्ता कौन सा है, या फिर ये ऐसे गई ऐसे, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं हम, ये ऐसे गई और ये वाली ऐसे गई, ये वाली तो चलिए ऐसे ही देखना पड़ेगा, तभी आइस में जाएंगे, तो आइस को इधर बनाना पड़ेगा। तो हमने आइस को यहाँ बनाया है, ये रे किधर बैंड हो जाएगी, ये इसका एक्चुअल रास्ता है ऐसा, किधर बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर मिल जाएगी, ये इसका एक्चुअल रास्ता है, ये किधर बैंड हो जाएगी ऐसे, ये रास्ता एक्चुअल है, नॉर्मल कहा ये नॉर्मल, ये रास्ता एक्चुअल है, किधर बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये वाली रे जिसको ऐसा जाना चाहिए था, ये किधर बैंड हो जाएगी अवे, आइस क्या करेगी बैक बैक, आइस तो वापस मुड़ेगी, तो ये ऐसा मुड़ेगी, तो ये कहाँ आके मिलेगी यहाँ, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ दिखेगा यहाँ, ऐसे ये वाला पॉइंट कहाँ दिखेगा यहाँ, तो ये जो अंदर सबमर्ज्ड है ये ऐसा दिखेगा, ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो वाटर के अंदर जो पार्ट है वो कैसा दिखता है, बेंड मुड़ा हुआ दिखता है, दैट्स द रीजन। रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और थोड़ा हायर लेवल पे भी दिखता है। ऐसे जब स्ट्रॉ को हम लोग एक स्ट्रॉ को वाटर ग्लास में डालते हैं तो सबमर्ज जो स्ट्रॉ है वो हमें एक्चुअल स्ट्रॉ से बैंड दिखाई देती है, रीजन सेम है, हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ये रीजन है। सिमिलरली कॉइन के लिए भी ऐसा होता है। सो व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन at the place of separation of both mediums the direction of light ray changes। जहां दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हैं वो लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। When light ray enter from one medium to another medium, then it deviate from its actual path। वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसी लैंग्वेज में हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आज अपना डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। बेसिक हमने रिफ्रैक्शन का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे लॉस क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के, और एक अगर ग्लास का स्लैब है तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन के लॉस क्या है, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन पे बेस्ड हम कुछ नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करेंगे, है ना, कि क्यों हमें मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में जो सन का कलर है वो रेड दिखता है, उसके पीछे बेसिक जो रीजन है वो रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, तो अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।